students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion series and we will be revising the complete concept of the chapter along with MCQs. Topic for this lecture is chemical thermodynamics. So let's start our work. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. Alright, in the chapter of thermodynamics, which is very important for our JEE mains exam, we have to learn about various thermodynamic processes like isothermal process, adiabatic process, isobaric, isochoric, etc. We have to know about the difference between a reversible process and irreversible process, and the concept of heat and work will be taken up after that. And related to this is the first law of thermodynamics. And first law will teach you that energy can neither be created, it cannot be destroyed, it can be simply converted from one form to the other form, right? And next will be the calculation of work done in various processes. जैसे कि isothermal reversible expansion of a gas है, तो work done कैसे calculate होता है, and if it is an adiabatic process, how to calculate the work done, and in isochoric and isobaric, what are the relations by which we calculate the maximum work done by the gas. And after that we have to come to the types of enthalpies. Types of enthalpies means the enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization, even the enthalpy of hydration, enthalpy of solution, etc. Related to that will be the numerical problems also. And in the next video we will be taking up the failure of first law and the questions on second law of thermodynamics. Related with that is the concept of entropy, concept of delta G, which is Gibbs free energy, which actually tells you about the criteria for spontaneity. But in this lecture the focus will be on the first law of thermodynamics, all the terms related with that, all the equations and numerical problems related with first law of thermodynamics, right? So let's start with the first slide, slide number 1. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में पहले आता है आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक के नाम से दिख रहा है कि बार प्रेशर का यूनिट होता है ना, सो प्रेशर इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस. आइसोबारिक में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट, एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. प्रेशर चेंज नहीं होगा और ये याद रखना है ओपन वेसल में प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्योंकि ओपन वेसल में एयर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट यू हैव आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी 0 होने से वर्क डन 0 हो जाता है. वर्क इज गिवन बाय पी डेल्टा वी एंड इफ डेल्टा वी इज 0 देन ऑटोमेटिकली वर्क डन विल बी 0. ये कब होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर. इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी 0, सो नो वर्क इज डन. अगर आपको ग्राफ के ऊपर शो करना है आइसोकोरिक प्रोसेस, लेट्स प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. इसी तरह अगर आप वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर को एक्सप्लेन करना चाहो तो भी वॉल्यूम कांस्टेंट दिखाना है. अगर हमें ड्रॉ करना है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, I hope the graph is visible to you. Pressure versus temperature, then volume is constant. In this manner we will be showing. ये center वाला ग्राफ हम थोड़ा left पे कर देते हैं so that it is properly visible. This one. This was a plot between volume versus pressure. तो प्रेशर चेंज हो रहा है पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस को डिपिक्ट करते हैं तीनों ग्राफ्स. These are the curves for isochoric process. And if it is isobaric, isobaric में हमने देख लिया प्रेशर कांस्टेंट होता है, नो चेंज इन प्रेशर. मतलब आप अगर कर्व प्लॉट करते हो बिटवीन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वी हैव pressure on y axis, we have temperature on this axis, pressure will not change. And let's plot pressure versus volume. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के अंदर भी हम आइसोबारिक प्रोसेस बना रहे हैं तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट दिखाना है. एंड इफ इट इज अ प्लॉट बिटवीन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, then this behavior will come. You will have a straight line
and in this manner we can show the line. This is प्रेशर कांस्टेंट। तो तीनों ग्राफ्स आइसोबारिक को डिपिक्ट कर रहे हैं, प्रेशर सब में कांस्टेंट है और यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट था। दो डेफिनेशंस के बाद नेक्स्ट आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या है? डिटेल द सिस्टम अंडरगो सेवरल चेंजेस बट फाइनली इट कम्स टू द ओरिजिनल स्टेट। डेल्टा यू एंड डेल्टा एच बोथ आर जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ये कंडीशन है कि हमारे पास डेल्टा H will be zero. Delta H is enthalpy of the system and delta U is internal energy of the system. तो दोनों ही जीरो है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर हमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ शो करना है तो आप A स्टेट से स्टार्ट करते हो। कोई थर्मोडायनेमिक स्टेट A है, उसका कुछ फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है एंड ए नंबर ऑफ चेंजेस आर मेड बट अल्टीमेटली यू आर कमिंग बैक टू A. When you come back to A, this is the original state. A से B गए, B से आप A आ गए, बट फाइनली जब A वापस आ गया, A वापस कैसे आएगा कि जो A का प्रेशर था PI और वॉल्यूम था VI, एक बार ही चेंज किया, चेंज करके वो A की जगह B बन गया, बट फर्दर अगर PI VI वापस ले आए हम तो A अपने आप वापस आ जाएगा। ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं और इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वी आर गिवन रिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस wherein the driving and the opposing forces are supposed to differ by infinitesimally small quantity and system is virtually in a state of equilibrium throughout. It takes infinite time and maximum work is done in reversible process. तो reversible process का मीनिंग अब हम ठीक से देखेंगे। रिवर्सिबल के लिए ये कंडीशन होता है कि दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट वेरी वेरी स्लोली। इस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होगा एंड स्लोली स्लोली प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। लेट्स हैव ए कंटेनर इन विच गैस इज कन्फाइंड एंड वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज केप्ट ओवर इट एंड आफ्टर दैट लेट्स से some weight is added through the wheat grains. We can directly show the wheat grains here. Wheat grains are suppose 10 in number. So these 10 grains are putting some weight. Let's say one wheat grain is removed out. 10 पहले थे, अब एक हटा दिया। कुछ एक वेट जो व्हीट ग्रेन का आपने रिमूव कर दिया है, उससे क्या होगा? गैस में थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा। गैस विल एक्सपैंड बाय अ वॉल्यूम dV। अगर वही व्हीट ग्रेन हम वापस रख देते हैं तो गैस विल कॉन्ट्रैक्ट बाय अ वॉल्यूम dV। सो बहुत स्मॉल स्मॉल चेंज यहां पे आता है। यहां पे अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स आर different from each other but infinitely it is written here. They are opposing force and driving forces are supposed to differ by infinitesimally small quantity. कितना वेट का फर्क किया मैंने? ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा पिस्टन सीधा लगा दिया, हमने व्हीट ग्रेन से कुछ वेट ऐड किया। उस व्हीट ग्रेन को आप रख भी सकते हो, आप हटा भी सकते हो। कहने का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग हर टाइम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। इट इज रिटन हियर, इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू आउट, राइट। तो कुछ वर्क कैलकुलेट हमें करना हो अगर, तो एक स्टेप में जो वर्क डन है स्मॉल dw, इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ pdv। अब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा। टोटल वर्क फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में शो करेंगे। मैक्सिमम वर्क गैस को करना पड़ता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट विल बी -2.303 nRT log V2 by V1। सो रिवर्सिबल प्रोसेस सिंगल स्टेप में नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में आप ये प्रोसेस को कैरी आउट करते हो, और जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस सिंगल स्टेप में होगा। सो द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इट विल बी प्रोसीडिंग इन ए सिंगल डायरेक्शन। इट इज यूनिडायरेक्शनल एंड इट इज अ फास्ट प्रोसेस। Irreversible process is quite fast and maximum work is not obtained in this. इसके अंदर driving force and opposing force are quite different from each other. Driving force is different from the opposing force.
राइट अगर गैस के ऊपर जो हमने पिस्टन लगा रखा है वो प्रेशर गैस प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत कम कर दिया जाएगा तो गैस में सडन एक्सपेंशन होती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नॉट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। उसके अंदर सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में थे। इक्विलिब्रियम का मतलब है कुछ बीट ग्रेन्स आप चाहो तो रख दो, आप चाहो तो हटा दो, और मैक्सिमम वर्क उसमें अचीव होता था। एंड ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स एक दूसरे से स्लाइटली डिफर करते थे। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स जो होती हैं दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर, राइट। Things are clear from each other. In this manner आपको रिवर्सिबल का वर्क डन अलग है और इरिवर्सिबल का अलग है। अगर इरिवर्सिबल में वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो P डेल्टा V होता है विच इज माइनस P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। एंड एक इंपॉर्टेंट बात कि साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा डेल्टा यू जीरो है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप चेक कर लो, डेल्टा यू इज सेट टू बी जीरो एंड क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू फॉर साइक्लिक। मतलब जो भी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा टोटल दैट हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय द गैस, राइट। तो ये वर्क डन कब कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस the work done is given by the relation minus 2.303 nRT log V2 by V1. This detail we will be taking up in the next slide. तो इसमें आपने अलग अलग प्रोसेस के बारे में देखा है। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 2. Now we have isothermal process. It is the process in which temperature and internal energy will always remain constant. No change in temperature and no change in internal energy. And heat is exchanged between the system and surrounding. बहुत important बात, isothermal process में system जो है वो surrounding के contact में रहता है। जितनी heat अगर वो एक्सचेंज करेगा तभी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होगा, अदरवाइज टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना डिफिकल्ट है। सो हमें वॉल्यूम को प्लॉट करना है टेम्परेचर के साथ। लेट्स से वी हैव V वर्सेस T, टेम्परेचर विल नॉट चेंज। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आपको प्रेशर को प्लॉट करना है टेम्परेचर से, फिर से वही, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। इफ आई हैव टू प्लॉट प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर तो ये बना दिया सेकंड नंबर पे। अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, देन दिस कर्व विल बी ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन दिस मैनर, ये डिटेल है। अलग अलग सिचुएशंस में हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करना था। इंपॉर्टेंट बात थी कि ये सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में रहता है तभी टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज एडियाबैटिक प्रोसेस. It is the thermally isolated process where the work is done at the cost of internal energy. Heat is not exchanged. Adiabatic के लिए मेन बात, no heat exchange. In adiabatic process, no heat is exchanged between system and the surrounding. तो ये जो प्रोसेस है ये थर्मली आइसोलेटेड होता है और Q जीरो हो गया तो डेल्टा U will be equal to work done. When Q is equal to 0, देन डेल्टा यू जो कि फर्स्ट लॉ ने बताया Q प्लस डब्ल्यू होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो तरीके से हो सकता है, या Q से या वर्क से। तो अगर Q जीरो है इट मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू W, राइट। सिस्टम के ऊपर, गैस के ऊपर अगर हम कोई काम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इन दिस मैनर एडियाबैटिक का डिटेल। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, गैस एक्सपैंड करती है फ्रीली। फ्रीली मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो वर्क डन विल बी जीरो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गैस फ्री एक्सपेंशन शो करती है मतलब वैक्यूम में गैस एक्सपैंड करती है। दूसरी बात, एडियाबैटिक भी कह दिया गया, एडियाबैटिक बोला है तो फिर Q विल बी जीरो एंड आइसोथर्मल कंडीशंस डेल्टा T डेल्टा U सब जीरो हो जाता है इफ इट इज द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। आगे देखिए, फॉर adiabatic reversible expansion gamma which is the ratio of Cp upon Cv, तो ये तीन रिलेशंस Pv raised to power gamma is constant adiabatic के लिए। टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? Tv गामा -1 कांस्टेंट एंड टेम्परेचर और प्रेशर का T गामा
P1 minus gamma. We can start with this relation PV gamma is constant. अब मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना है, तो PV इज इक्वल टू nRT में से हमने n को ले लिया 1 मोल और प्रेशर को लिख देंगे RT बाई V. तो ये एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं. दिस इज RT बाई V एंड V रेज टू पावर गामा एज कांस्टेंट. कैन इट बी रिटन एज TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K. ये K अपॉन R बनेगा पहले, सो विच इज अनदर कांस्टेंट. TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. इन दिस मैनर PV इज इक्वल टू PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक. हम एडियाबैटिक का डिटेल कर रहे हैं, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी आएंगे. अब हम वॉल्यूम को लिख देते हैं इस टर्म में RT बाई V. तो कैन इट बी रिटन एज RT बाई वॉल्यूम को लिखना था RT बाई P. तो एक प्रेशर ऑलरेडी है, दिस इज RT बाई P एंड एवरीथिंग रेज टू पावर गामा. व्हाट यू आर एबल टू राइट, इट विल बी इक्वल टू R कांस्टेंट को तो हम बेटर है राइट पे ही ले जाएं. ठीक है, तो ये बन जाएगा T गामा एंड P रेज टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. R को राइट पे ले गए. तो ये तीन रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर का, टेम्परेचर वॉल्यूम का एंड प्रेशर वॉल्यूम का, राइट, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आपने सारी प्रोसेसेस के बारे में जान लिया है. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क एंड हीट. During expansion from volume V1 to V2 at temperature T and pressure P, delta V is positive. जब गैस एक्सपेंड करेगी, मतलब कि 2 लीटर से 10 लीटर वॉल्यूम हो रहा है, तो डेल्टा V पॉजिटिव आएगा. एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस बिकॉज इट इज एक्सपेंशन एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव. W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, मतलब माइनस P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो इनिशियल वॉल्यूम है 2 लीटर और हमने एक्सपेंड करके 10 लीटर बना दिया. 2 लीटर टू 10 लीटर एक्सपेंशन हो रहा है अगर, तो आर यू एबल टू सी द वर्क एज नेगेटिव वैल्यू. जो भी प्रेशर है वो पुट करेंगे, वर्क कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव आएगा, जबकि डेल्टा V पॉजिटिव था. और फिर आगे क्या लिखा है, अगर कंप्रेशन हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो हमने डिस्कस कर लिया. अब कंप्रेशन में तो वॉल्यूम कम होता है, कंप्रेशन में डेल्टा V नेगेटिव होता है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. आप चेक करिए. फॉर कंप्रेशन वी कैन राइट डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. अब 10 लीटर से आप 2 लीटर पे आ रहे हो, तो ये -8 हो गया. चेंज इज फॉर -8 लीटर्स एंड वर्क डन विच इज माइनस P डेल्टा V, इट विल बी माइनस P इंटू नेगेटिव ऑफ समथिंग, यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. सो वर्क डन इज पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे डेल्टा V नेगेटिव है. तो वर्क डन के साइंस जो हैं, साइन कन्वेंशंस, वो इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट आता है मैक्सिमम वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल बोलने से टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. डेल्टा U ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. डेल्टा U है इंटरनल एनर्जी का सिंबल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एंड in a reversible expansion, if the initial volume is Vi and final volume is Vf corresponding to pressures Pi to Pf, then you can calculate the work in this manner. Delta U is 0, therefore अगर हम स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करें इन वन सिंगल स्टेप, आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्टेप में नहीं होता है, माइनस P dV को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए. कैन इट बी रिटन एज मैक्सिमम वर्क डन इक्वल टू माइनस nRT अपॉन V इंटू dV. द कॉन्स्टेंट टर्म्स आर टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन 1 अपॉन V dV, राइट, एंड 1 अपॉन x dx का इंटीग्रल क्या होता है, it is natural log of x, and we have minus nRT natural log V with the conditions initial state Vi, final state V2, V1 V2 या Vi Vf ले सकते हैं, and this is equal to minus 2.303 nRT log ratio of final volume upon initial volume, right. in this manner आप कैलकुलेट करते हो. और प्रेशर की टर्म्स में अगर लिखना है एक्सप्रेशन, तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो जो आपका वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो कि न्यूमरेटर में था, वो अब प्रेशर की टर्म्स में लिखोगे तो फाइनल प्रेशर डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा. नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट वर्क इज डन बाय द गैस, बाय द सिस्टम.
Moving to the next slide. Now we have mechanical work done during adiabatic process. Right? In adiabatic process, no heat is exchanged with the surroundings. Hence, Q is equal to 0. So, work done by the system will be separate, work done on the system will be separate. Delta U is equal to Q minus W and delta U is equal to Q plus W in the other case. कहने का मतलब ये है work done by the system, that is expansion, this will be taken as negative, and work done on the system, is compression of the gas and it is taken to be positive. अब adiabatic process है तो Q will be 0, delta U is equal to Q plus W, means delta U is equal to W, and delta U हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NCV delta T. This is the method to calculate work done. You should know the heat capacity of the gas and two temperatures. Right? So it is written here. Work done for adiabatic process is calculated by N into CV, final temperature minus initial temperature, where N is the number of moles and CV is the molar heat capacity of the gas at constant volume. Important relation for the calculation of work done in adiabatic process. इसी तरीके से आप डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हो. डेल्टा ई और डेल्टा यू एक ही बात है, जो डेल्टा यू है और वो वर्क के भी इक्वल है हम. राइट, नेक्स्ट आते हैं हम हीट कैपेसिटी. अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है. समझ लो हमने 2 सैंपल्स लिए, एक ले लिया वाटर, एक ले लिया मिल्क, और दोनों को रूम टेम्परेचर पे रखा है, मतलब कि 25 डिग्री पे रखा है. अब दोनों को 26 पे लेके जाना है. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या हमें वाटर और मिल्क को सेम हीट देनी पड़ेगी? आंसर है नो. हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. हीट कैपेसिटी हर सैंपल की अलग होती है. सो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी हीट देना पड़े, दैट इज कॉल्ड एज heat capacity. So keep in mind, rise in temperature is different for different substances. आयरन की रॉड को हीट कर रहे हैं हम या फिर किसी गैस को हीट कर रहे हैं तो अलग अलग हीट आपको देनी पड़ती है, इवन दो द टेम्परेचर राइजेस सेम. सो ये जो हीट कैपेसिटी है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये अमाउंट पे डिपेंड करती है. ये भी फर्क पड़ता है कि आपके पास सैंपल कितना है. आपको 1 लीटर वाटर को हीट करना है या 5 लीटर वाटर को हीट करना है. मोर इज द अमाउंट ऑफ द सैंपल, मोर अमाउंट ऑफ हीट यू हैव टू गिव. सो कंपैरिजन के लिए फिर हीट कैपेसिटी से बेटर टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हम सैंपल का अमाउंट फिक्स कर देते हैं जो कि 1 ग्राम बना लिया जाता है. तो सिंबल CS, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू rise the temperature of the 1 gram of substance through 1 degree Celsius. Is it okay? And it is heat capacity तो था Q upon delta T. ये है Q upon mass and then delta T. इसमें mass भी आएगा. तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी अगर 1 मोल के लिए होगा तो मोलर बन जाएगा, 1 ग्राम के लिए होगा तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दिया जाता है. एंड 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं. एक है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक है एट कांस्टेंट प्रेशर. कीप इन माइंड दिस इज du by dt. Cv is heat capacity at constant volume and Cp is dH by dt. U और T में यही फर्क होता है. U है इंटरनल एनर्जी. कीप इन माइंड इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा U है, इट इज द heat of the system at constant volume. ये है तो change in internal energy, but it is nothing but heat of the system at constant volume. It is heat of the system at constant volume and delta H जो है, this is heat of the system at constant pressure. Heat of the system at constant pressure, right? हमें ये रिलेशन तो पता ही है. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस nRT. nR डेल्टा T लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर को. इफ आई राइट द इक्वेशन इन दिस मैनर,
इट इज डेल्टा एच क्या है, Cp डेल्टा T, ये है Cv डेल्टा T, और N को हमने 1 मोल ले लिया, N ले लिया है 1 मोल। देन द इक्वेशन बिकम्स डेल्टा T कॉमन है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दोनों हीट कैपेसिटी के अंदर क्या रिलेशन है वो आपने देख लिया, और दोनों का रेशो है जो Cp अपॉन Cv, दैट इज कॉल्ड एज गामा। गामा इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। अलग अलग गैसेस के लिए गामा पता होना चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस है जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, उनका Cv है 3/2R जबकि Cp है 5/2R, दोनों में R का डिफरेंस है। इन दिस मैनर द रेशियो विल बी 5/3। एंड इफ इट इज ए डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस में आप H2O2 N2 ये ले सकते हो, तो Cv is 5/2R, 7/2R is Cp, and the ratio is 1.4. Triatomic में ratio है 1.33, and the values are 4R and 3R. 3R is for Cv, 4R is for Cp. तो heat capacity and the various terms of isothermal, isobaric, isochoric, and with the knowledge of these terms we have to do the questions, starting with the first question now. Question number 1. The question is, a cyclic process is shown in PT diagram. Which of the curve shows the same process on VT diagram? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम को आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर डिपिक्ट करना है। तो हम चेक कर सकते हैं डायग्राम से, हमें ये दिख रहा है कि A to C, A से देखो C तक जाने में टेम्परेचर कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है वो देखेंगे। A to C प्रेशर इज कांस्टेंट, सो इट इज आइसोबारिक। इफ आई मूव फ्रॉम B to C, टेम्परेचर कांस्टेंट है उसमें, दैट इज आइसोथर्मल। एंड वी हैव A to B, A to B के अंदर क्या हमें ऐसा दिख रहा है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर चेंजिंग, टेम्परेचर प्रेशर दोनों चेंज हो रहे हैं, एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अब हम ये सारी ऑप्शंस के अंदर ट्राई करना है हमें, मतलब कि ए बी आइसोकोरिक है और बी सी जो है वो आइसोथर्मल है, एंड यू हैव टू चेक फॉर ए सी से स्टार्ट करते हैं, हमें ए सी आइसोबारिक चाहिए, ए टू सी आइसोबारिक। तो A to C आइसोबारिक दिख रहा है, बट एरोस का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। इफ आई कम टू द अदर थिंग, B to C चेक करें, B to C इज आइसोथर्मल। लेट्स सी फ्रॉम B to C आइसोथर्मल, और एरो का डायरेक्शन B to C के अंदर एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स B, और D के अंदर एरो जो है वो B की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। अब हम देखते हैं AC को। इन AC वी हैव टू चेक फॉर आइसोबारिक। AC आइसोबारिक है और AB जो है वो आइसोकोरिक है। डी ऑप्शन में सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। AB आइसोकोरिक दिख रहा है, AB पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और एरो का डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। AB के अंदर हमारे क्वेश्चन में एरो इज टुवर्ड्स A, और डी ऑप्शन में एरो इज टुवर्ड्स A, राइट। इन दिस मैनर सारी ऑप्शंस को केयरफुली देखना पड़ेगा। उससे पहले अपना जो प्रोसेस है क्वेश्चन का, 3 स्टेप्स में प्रोसेस हो रहा है, उसको मेंशन करो कि कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोकोरिक है। सो इन वीटी डायग्राम ये जो है प्रोसेस डी ऑप्शन के जैसा दिखेगा, राइट। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। An ideal diatomic gas is caused to pass through a cycle shown on PV diagram in the figure, where V2 is 3 times of V1। कहने का मतलब अगर V1 1 लीटर है तो V2 3 लीटर है। P1, V1, T1 they specify the state 1, then the temperature of state 3 is, स्टेट 3 का टेम्परेचर निकालना है हमें, और स्टेट 1 का पता है। 1 से 3 प्रोसेस चेक करो, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है 1 से लेके 3 तक, जबकि ये 2 से 3 ये आइसोकोरिक है। 2 से 3 में आप ग्राफ के ऊपर देख सकते हो आइसोमेट्रिक लिखा है, आइसोमेट्रिक मतलब आइसोकोरिक, नो चेंज इन वॉल्यूम, राइट। अब हमें क्या करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व दिया आपको। क्वेश्चन जो है इट इज आस्किंग फॉर टेम्परेचर एट स्टेट 3, थर्ड के ऊपर टेम्परेचर बताना है। सो टीवी का क्या रिलेशन होता है, टीवी गामा -1 इज कांस्टेंट। कैन इट बी रिटन एज T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2
बेटर है 3 कर लो क्योंकि थर्ड पॉइंट पे बताना है। ठीक है, T1 एंड T3 हम कंपेयर कर रहे हैं, बट हमें V3 नहीं पता है, बट ये पता है V2 इज, जो भी V2 होगा वही V3 होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है और V2 3 गुना ज्यादा है V1 के कंपैरिजन में। इन दिस मैनर ये बन जाएगा T1 V1 अपॉन V3 रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T3। ये T3 कैलकुलेट करना है एंड यू शुड नो दैट T3 नहीं, V3 and V2 they are equal because the process is isocoric। तो यहां पे वैल्यू है T1, यहां पे है 1 और ये 3, V2 V3 सेम है तो एक ले लिया V1, एक ले लिया 3V1 एंड रेस टू पावर गामा माइनस 1 कौन सी गैस है? डायटोमिक गैस। फॉर डायटोमिक गैस गामा वैल्यू होता है 7/5 एंड दिस इज इक्वल टू T3। इन दिस मैनर T3 आ गया आपका T1 इंटू 1/3 एंड 7/5 माइनस 1 का मतलब 2/5। 2/5 इज नथिंग बट 0.4। 1/3 raised to power 0.4। This is the answer. Let's come to the options. C option answer है T1/3 raised to power 0.4। 1/3 के ऊपर 0.4 है, आपको T3 कैलकुलेट करना था, V3 भी पता नहीं था, बट ग्राफ से दिख रहा है कि V2 और V3 का वॉल्यूम सेम है तो जो भी V2 का वैल्यू है वही हमने V3 में ऐड कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड you are able to find the relation between the two temperatures. Is it okay? Moving to the next question number 3. A heat engine carries 1 mole of ideal monoatomic gas. अब monoatomic gas है and it is around the cycle as shown in figure. The process 1 to 2 takes place at constant volume. 1 से लेके 2 तक का process constant volume पे हो रहा है, isocoric है। 2 to 3 is adiabatic, डायग्राम में दिख रहा है, and 3 to 1 is at constant pressure, मतलब ये आइसोबारिक है। Then the amount of heat added in 1 to 2, 1 से लेके 2 तक जो प्रोसेस है उसमें कितना हीट ऐड होता है? पहली बात तो 1 to 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक के अंदर डेल्टा V नहीं चेंज होता, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट देयर, सो वर्क डन इज ऑल्सो नॉट देयर। वर्क डन W जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू Q एंड इट इज गिवन बाय, आपको क्या कैलकुलेट करना था? अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट हम डेल्टा ई से कैलकुलेट करेंगे, इसको डेल्टा यू भी कहते हैं, एक ही बात है, कुछ बुक्स ने सिंबल दिया होता है ई और कुछ बुक्स ने सिंबल दिया होता है यू, इंटरनल एनर्जी का, एंड डेल्टा यू इज नथिंग बट NCV डेल्टा टी। एंड मोनोएटॉमिक गैस बोला था तो CV का वैल्यू है 3/2 R एंड क्वेश्चन में 1 मोल गैस है, टेम्परेचर चेंज कितना है चेक करते हैं। यू हैव टू चेक दी टेम्परेचर, एक जगह पे टेम्परेचर है 300, ये आपको वैल्यू दिख रहा है 300 और ये वैल्यू दिख रहा है 600। हम 1 to 2 का काम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 to 2 में 600 माइनस 300, यू आर गेटिंग 3/2 R इंटू 300, इट विल बी इक्वल टू 450 R। R का वैल्यू पुट करेंगे 8.314 एंड इट इज 3740 जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट अक्रॉस द साइकिल 1 से लेके 2 तक। आपका आंसर है 3740, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मतलब ए ऑप्शन। 1 से लेके 2 तक अगर आप देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट चेंज क्या क्या हो रहा है? टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना हीट डाला उसका आंसर है 3740। कंडीशन ये लगा दिया कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 mole of a monoatomic ideal gas is caused to go through a cycle shown in the figure। एक तो बात है कि मोनोएटॉमिक गैस है, and then the change in internal energy in expanding from A to C along the path ABC। A से लेके C तक जब गैस एक्सपेंड होती है, आप देखो वॉल्यूम 4 गुना हो रहा है, पहला वॉल्यूम V0 था, 4V0 हो गया C पे। प्रेशर में भी चेंज है, P0 की जगह ये 2P0 हो गया, प्रेशर के अंदर इंक्रीज, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज। और मोनोएटॉमिक गैस 1 मोल इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट द
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या हमें पता है? डेल्टा यू इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी। तो दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सीवी तो पता है 3/2R होता है मोनोटॉमिक गैस का। तो अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। पहले टेम्परेचर एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर है PV इज इक्वल टू NRT से क्या हम लिख सकते हैं? P0 V0 अपॉन R। प्रेशर चेक कर लो, P0 था, वॉल्यूम चेक कर लो, V0 था, गैस 1 मोल ले लिया, क्वेश्चन के अंदर 1 मोल गिवन था। अब है टेम्परेचर एट पॉइंट C, फिर से PV अपॉन R, बट प्रेशर लेंगे 2P0, वॉल्यूम है 4V0, ये चेक कर लो 4 टाइम्स अपॉन R, मतलब 8P0 V0 अपॉन R। दिस इज द वैल्यू फॉर टेम्परेचर एट C। कैन इट बी रिटन एज टेम्परेचर एट C इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ T0। ये T0 था, P0 V0 अपॉन R वॉज T0। तो टेम्परेचर आपको एक पॉइंट पे भी और C पॉइंट पे भी पता चल गया है। डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। It is 1 mole. This is 3/2R. Final temperature 8 T0. Initial temperature is 1 T0. मतलब कि 7 T0. It is equal to 3/2R into 7 T0. ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। This will come out to be 10.5 R into T0. This is the change in internal energy of the system. 10.5 R T0 मतलब D ऑप्शन हमारा आंसर है। Things are clear. Moving to the next, 5th question. A thermodynamic system consists of a cylinder piston arrangement with ideal gas in it. It goes from state I to state F. मतलब initial state I थी, final state F, as shown in the figure. These are the points I and F. The work done by the gas during the process is. I से लेके F तक हम ये देखते हैं कि प्रेशर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो ये प्रोसेस में वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन होता है -P डेल्टा V। नो चेंज इन वॉल्यूम मीन्स नो चेंज इन वर्क। वर्क डन विल बी 0। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन A। जब जब आइसोकोरिक प्रोसेस है वर्क डन 0 हो जाता है, because work done is P delta V. Things are clear. Let's move on to the next question. Question number 6. A cyclic process ABCA is shown in a VT diagram. Corresponding PV diagram is. VT diagram आपको दिया है, चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या सिचुएशन है। अगर हम AC को देखते हैं, AC में टेम्परेचर कांस्टेंट है। दिस प्रोसेस इज isothermal according to the graph. And the process BC के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, that is isocoric. And the process AB में वॉल्यूम भी चेंज है, टेम्परेचर भी चेंज है, वहां प्रेशर कांस्टेंट है, that is isobaric. अब ये 3 कंडीशंस हैं और इसको PV कर्व पे दिखाना है। मतलब AC, AB और BC 3 स्टेप्स थे पूरे साइक्लिक प्रोसेस के। AB पहले देखो कि आइसोबारिक कहां कहां पे आ रहा है। AB is coming isobaric in curve A and curve C, and BC is coming isocoric in C and A again. Direction of arrows check करने पड़ेंगे। And IAB is isobaric. AB आपको isobaric दिख रहा है in C curve। जैसे जैसे हम प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व देखते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व क्या स्ट्रेट लाइन होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इफ आई हैव टू प्लॉट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? ये ऐसा कर्व आएगा, इनवर्स का बिहेवियर आएगा। तो मतलब आपका आंसर ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आंसर आएगा। इट इज दिस डायग्राम विल लुक लाइक सी इन पीवी कर्व। पहले ये वीटी कर्व था, अब ये पीवी कर्व हमने बना दिया, राइट? सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फॉर entrance exam, very important. Next, 7th question. Pressure volume graph of an ideal gas cycle is shown below. The adiabatic process is described by A, B, B, C, C, D and A, D. ये कुछ
प्रोसेस हैं, इनमें से एडियाबैटिक हमें ढूंढना है। तो एडियाबैटिक के लिए सबसे पहली बात कि स्लोप इज मोर, स्लोप इज मोर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो स्लोप ज्यादा है तो मतलब एक तो BC बनता है और AD बनता है, B से लेके C तक का सिचुएशन में स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू AB। ऐसे AD को देखो तो हाई स्लोप इज देयर। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा AB, हमें आइसोथर्मल नहीं, हमें एडियाबैटिक फाइंड आउट करना है। आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मुझे इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, PdV पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया, इट इज इक्वल टू 0। तो VdP इज इक्वल टू माइनस PdV, राइट। dP अपॉन dV कैलकुलेट करना है, विच इज नथिंग बट स्लोप, इट विल बी इक्वल टू माइनस P अपॉन V। अब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। एडियाबैटिक के लिए रिलेशन होता है PV गामा इज कांस्टेंट। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम स्लोप कैलकुलेट करें। एक टर्म कांस्टेंट, पहला आपने P कांस्टेंट रखा, इट इज गामा V रेज टू पावर गामा माइनस 1 प्लस V गामा इंटू DP इज इक्वल टू 0। DP वाली टर्म को रखो लेफ्ट पे और राइट पे दूसरी जाएगी, यहां पे DV भी लिखना था। सो इट इज इक्वल टू गामा, दिस इज गामा, राइट, गामा P V रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू DV विद ए नेगेटिव साइन। अब DP अपॉन DV बना लो लेफ्ट पे, DP अपॉन DV इज इक्वल टू, इट इज माइनस गामा and then you have P upon V. Compare the two relations. लेफ्ट पे आइसोथर्मल प्रोसेस है और राइट पे एडियाबैटिक प्रोसेस है। हमने दोनों में स्लोप कैलकुलेट किया। कैन यू सी यहां पे गामा टाइम्स P अपॉन V आ रहा है। आइसोथर्मल का स्लोप है P अपॉन V, राइट पे एडियाबैटिक है, उसका स्लोप है गामा टाइम्स P अपॉन V। सो मोर स्लोप फॉर एडियाबैटिक। ज्यादा स्लोप किस सिचुएशन में दिख रही है? B to C एंड A to D। तो आपका आंसर बनता है C ऑप्शन, AD एंड BC, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 8। An ideal gas is taken around the cycle ABCA shown in PV diagram. The net work done by the gas during this cycle is, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द साइकिल ABCA। इसका एरिया ट्राइंगल है तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है? AC और हाइट है AB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC फ्रॉम द कर्व? ये पॉइंट है 3V1, ये पॉइंट है V1, तो ये हो गया 2V1 एंड AB हो गया 5P1, क्योंकि एक था P1 एक था 6P1। सो योर आंसर इज 5P1V1। 5P1V1 आपका टोटल वर्क डन रहेगा, नेट वर्क डन रहेगा। आंसर इज C। So in this manner, in the cyclic process, you can calculate the work done. Simple but important question. Another one is question number 9. A thermodynamic process is shown in the following figure. The pressure and volumes corresponding to some points in the figure are given. PA का वैल्यू दिया है, A पॉइंट पे जो प्रेशर है वो दिया है पास्कल्स में 3 × 10⁴, और A पॉइंट का वॉल्यूम भी दिया है, वो मीटर क्यूब में है 2 × 10⁻³ एंड B पॉइंट का भी डेटा है। B पॉइंट पे ये आपका प्रेशर पास्कल्स में और वॉल्यूम ऑल्सो गिवन। इन द प्रोसेस AB 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। जब A से B जाते हैं तो यहां पे 600 जूल हीट ऐड कर दी गई और B से C में 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग द प्रोसेस AC में आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पहली बात, ये जो AB प्रोसेस है यहां पे तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। AC नहीं, AB पहला स्टेप ये वाला, A से लेके B तक, यहां पे कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं है। वॉल्यूम चेंज नहीं है तो आइसोकोरिक डेल्टा V 0, मतलब वर्क डन इज 0, क्योंकि वर्क डन होता है P डेल्टा V। और B to C में वर्क होगा, वर्क अलोंग B to C हम कैलकुलेट करें तो वो कैलकुलेट कैसे होगा? इट विल बी इक्वल टू
P डेल्टा V। सो प्रेशर B पॉइंट पे और डेल्टा V के लिए आपको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस लेना पड़ेगा। प्रेशर एट B इन ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ C पॉइंट माइनस वॉल्यूम ऑफ B पॉइंट। अब C और B का क्या हमें वॉल्यूम गिवन है, ये देखो वॉल्यूम एक तो A का गिवन है, एक D का गिवन है, B और C का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैन इट बी रिटन एज इक्वल टू पी बी इंटू वी डी माइनस वी ए। ये D और C पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, इसी तरह A और B पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो जो वैल्यूज आपको पता है उससे आपका काम चल रहा है, क्योंकि C भी पता नहीं था बट D और A का वैल्यू मालूम था और उनका वॉल्यूम भी सेम है। P पॉइंट पे प्रेशर है 8 इंटू 10 रेज टू पावर 4, दिस इज 8 इंटू 10 रेज टू पावर 4, और वॉल्यूम एट D क्वेश्चन में कितना दिया है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, this is 5 into 10 raised to power minus 3 minus 2 into 10 raised to power minus 3 आ रहा है 240। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 240। ठीक है, बट अल्टीमेटली ये नेगेटिव रहेगा। वर्क डन, ये एक्सपेंशन है ना, B से लेके C तक एक्सपेंशन हो रही है, B का वॉल्यूम कम था, C का वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपको नेगेटिव रखना है। अब हम क्या करेंगे, हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जो कि इंटरनल एनर्जी AC स्टेप का चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू हीट एडेड एट AB प्लस हीट एडेड एट BC माइनस वर्क डन अलोंग AB एंड वर्क डन अलोंग BC। वर्क के आगे नेगेटिव का साइन रहता है। हीट एडेड क्वेश्चन ने बोला यहां 600 जूल ऐड करी गई, यहां 200 ऐड करी गई, और किस में वर्क जीरो था, A और B में वर्क डन जीरो था। फॉर AB वर्क डन वॉज 0, तो ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 240। योर आंसर इज 560 जूल्स। डेल्टा U along AC, change in internal energy along the path AC is 560 joules, and 560 जूल का मतलब आंसर बनता है A ऑप्शन। ठीक है, 800 में से हमने 240 माइनस किया। तो इस तरीके से वर्क कैलकुलेशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर हमारा नीट जेई मेंस एग्जाम। नेक्स्ट इज द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर इज। इस फिगर में क्या वर्क डन होगा, साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क आप कैलकुलेट करोगे बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो एक लिया वैल्यू पाई और रेडियस है 30 माइनस 20, अदर इज ऑल्सो 30 माइनस 20। ठीक है, किलो पास्कल और लीटर ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। व्हाट इज द फाइनल आंसर आफ्टर कैलकुलेशन, इट इज 10 इंटू 10 पाई, दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10, बट किलो पास्कल के अगर हम पास्कल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3, या बेटर है साइड पे लिख देते हैं, दिस कन्वर्जन फैक्टर वी कैन राइट हियर। किलो पास्कल के अंदर 10 रेज टू पावर 3 पास्कल और 1 लीटर में 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इज योर आंसर, 100 पाई। राइट, यूनिट्स को इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट फॉर वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, and for pressure it is pascals, and P into V से जूल बनेगा, आपका आंसर आएगा 10 raised to power 2 pi in joules, मतलब C ऑप्शन, C is the answer. Moving to the next question now. A cyclic process ABCD is shown in PV diagram. Which of the following curves represents the same process? देखिए A टू B को एनालाइज करते हैं। A टू B में प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक दिख रहा है, और B टू C जो है वहां पे वॉल्यूम भी चेंज है, प्रेशर भी चेंज है, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज आइसोथर्मल। P का V के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। CD की बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक। अगर हम बात करते हैं AD का तो वो भी आइसोथर्मल है। अब इसको हमें ऑप्शंस के अंदर रिलेट करना है, और ऑप्शंस हैं VT कर्व पे, ये तो था PV कर्व। AB इज आइसोकोरिक,
ए बी इज आइसोबारिक, सॉरी, ए बी आइसोबारिक है और आइसोकोरिक ढूंढना इजी रहेगा क्योंकि वॉल्यूम का कर्व है, सी डी इज आइसोकोरिक। तो स्टार्ट करो विद सी डी। सी डी आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट एक तो बी में दिया है और एक सी में दिया है, बी और सी ऑप्शन में सी डी कर्व का आइसोकोरिक दिखाया है। एंड ए डी को आइसोथर्मल, ए डी को आइसोथर्मल दोनों में दे दिया, ये देखो ए डी यहां भी आइसोथर्मल है, ए डी आइसोथर्मल सी ऑप्शन में भी है। और BC इज ऑल्सो आइसोथर्मल, BC इज ऑल्सो आइसोथर्मल, बट एरोस को चेक करें। एरो अगर BC का देखें तो B से चल के C की तरफ एरो रखना है, B to C एरो। एंड द प्रोसेस दिस वन आइसोबारिक इज AB, AB इज आइसोबारिक। ये वॉल्यूम और वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व आइसोबारिक, B की तरफ एरो है, एरोस मैच कर रहे हैं C ऑप्शन के साथ, आपका आंसर ये बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन में स्टेप्स होते हैं उनको पहले फाइंड आउट करो, आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है या आइसोथर्मल है। आफ्टर दैट यू कैन कंपेयर द ऑप्शंस, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 12। 2 mole of an ideal gas expanded isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. Find out the enthalpy change. The gas is expanded isothermally. It is written here. आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या मीनिंग होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन मीन्स नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन एंथैल्पी, राइट। तो आपका आंसर है डी ऑप्शन। जेई मेंस 2005 में पूछा गया सिंपल क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन। ये 1 लीटर 10 लीटर जो होगा वो आपको वर्क डन कैलकुलेट करने में यूज फुल रहेगा, बट एंथैल्पी चेंज तो 0 है। इज इट ओके? अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए वर्क कैलकुलेट करो तो आप लगाओगे -2.303 nRT log V2 upon V1। Things are clear? Moving to the 13th question now. A sample of an ideal gas is expanded 1 meter cube to 3 meter cube in a reversible process for which you are given pressure P is equal to kV square, where K constant has a value 6 bar per meter m raised to power 6, right? Work done by the gas is, तो देखिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, PdV से हम कैलकुलेट करेंगे एंड यू हैव टू इंटीग्रेट, एंड द सिचुएशन इज द P इज इक्वल टू K इंटू V स्क्वायर, P की जगह K V स्क्वायर इंटू dV। K का वैल्यू गिवन है 6 एंड कीप इन माइंड बार पर मीटर क्यूब में दिया 6 बार पर मीटर क्यूब का मतलब 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल पर मीटर क्यूब नहीं है, मीटर रेज टू पावर 6 है, राइट। मैंने एक बार में अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर 5 पास्कल ले लिया, एक्चुअल वैल्यू ये होती है 1 बार इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, तो विच इज टेकन टू बी 10 रेज टू पावर 5 पास्कल अप्रोक्सीमेटली। तो ये हम साइड पे कर देते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क। 1 सेकेंड, ये आप लेफ्ट पे कन्वर्जन फैक्टर लिख दिया है। अब मेन इक्वेशन पे आते हैं, इट इज 6 इंटू वी स्क्वायर इंटू डीवी, तो 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 हो जाएगा वी स्क्वायर डीवी, राइट। तो वी विल बी डूइंग द इंटीग्रेशन, दो वॉल्यूम्स हैं 1 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब। कांस्टेंट पैरामीटर्स को बाहर ले आएंगे, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 एंड इनसाइड द इंटीग्रेशन यू हैव वी स्क्वायर डीवी। तो ये बना 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आफ्टर इंटीग्रेशन v क्यूब अपॉन 3 एंड द इनिशियल वॉल्यूम vi, फाइनल वॉल्यूम vf, एंड इट इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 फाइनल वॉल्यूम क्यूब अपॉन 3 माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्यूब अपॉन 3। 3 इज अ कॉमन फैक्टर, उसको बाहर ही कर लो। इट इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम और क्यूब्स है। फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू चेक करो, 3 दे रखा है, इनिशियल इज 1, तो इट इज यू हैव 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, मतलब 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, दिस इज 27 माइनस 1, 26 हो गया ब्रैकेट के अंदर। 52 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ये जूल्स में आंसर आया। किलो जूल में अगर लिखना हो तो 5200 किलो जूल बन जाएगा। 1
किलो जूल इज 1000 जूल्स। 52 किलो जूल्स मीन्स हमारा आंसर है ऑप्शन ए। वर्क डन कैलकुलेट करना था एंड पी डेल्टा वी यूज करके हमने इंटीग्रेट किया और वर्क कैलकुलेट किया। इज इट क्लियर? SI unit for SI unit for pressure is Pascal, for work is Joule, and volume का SI unit होता है मीटर क्यूब। Moving to the next now, question 14. PV plot for two gases during adiabatic processes are given in figure. Plot A and plot B should correspond respectively to. तो देखिए दोनों हमारे को एडियाबैटिक प्रोसेस दिए, एक ए है और एक बी है। एडियाबैटिक में होता है पीवी गामा इज कांस्टेंट। अगर मुझे इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम पहले डिफरेंशियल ले लेते हैं। इट इज वी गामा डी पी प्लस गामा वी गामा -1 डी वी इंटू पी इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये dp का वैल्यू हम रखेंगे लेफ्ट पे, बाकी सब राइट पे ले जाओगे। इट इज v गामा dp इक्वल टू गामा v रेज टू पावर गामा -1 इंटू dv एंड 1 p इज ऑल्सो देयर, राइट। dp अपॉन dv स्लोप है, वो आप कैलकुलेट करिए। dp अपॉन dv बन जाएगा गामा p अपॉन v, राइट। एक v डिनोमिनेटर में रह गया, तो स्लोप के अंदर गामा वैल्यू आ रही है और ग्राफ से आपको ये दिख रहा है स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व। एज अ रिजल्ट गामा 2 इज ग्रेटर देन गामा 1। गामा 2 ज्यादा बड़ा है और ऑप्शंस में हीलियम H2, हीलियम नियोन, हीलियम क्लोरीन दिया है। Are we aware of the fact that monoatomic gases like helium, neon, argon, they have a gamma as 1.66, जबकि डायटोमिक का गामा होता है 1.40। तो किसका गामा ज्यादा है? मोनोएटॉमिक गैस का गामा हायर है। तो मोनोएटॉमिक गैस का बी कर्व होगा, मतलब कि आपका हीलियम जो है वो बी को डिपिक्ट कर रहा है और H2 है जो वो ए को डिपिक्ट कर रहा है। हमारा आंसर बनता है बी ऑप्शन, right? Is it okay? So important question. And next we have another one, question number 15th. If W1, W2, W3 and W4 for an ideal gas, they are work done in isothermal, adiabatic, isobaric and isochoric processes, reversible expansion processes. The correct order will be. तो देखते हैं ग्राफ पे, अगर हमें शो करना हो आपके पास बिहेवियर में कर्व में एक तरफ है प्रेशर एक तरफ है वॉल्यूम, तो ये तो हो गया आइसोबारिक। जब प्रेशर कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक एंड दिस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के बाद आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है। दिस इज एडियाबैटिक एंड दिस इज आइसोथर्मल, राइट। एंड आइसोकोरिक का तो वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर मुझे यहां आइसोकोरिक शो करना है तो वो आप ऐसे शो कर सकते हो। दिस इज आइसोकोरिक। मैक्सिमम वर्क डन किसके पास है वो आंसर चाहिए, तो आइसोबारिक का वर्क डन मैक्सिमम होगा। ये देखते हैं, वर्क इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले, अगर मुझे एडियाबैटिक के लिए वर्क डन देखना है तो ये ब्लू कलर से हम एडियाबैटिक का वर्क डन इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे आइसोथर्मल में कैलकुलेट करना है तो आइसोथर्मल का ये ब्लैक पेन से शो हो रहा है। आइसोथर्मल विल हैव मोर। आइसोबारिक का तो और भी ऊपर से स्टार्ट होगा। So maximum work done is in isobaric process. क्वेश्चन में देखो आइसोबारिक का सिंबल क्या दिया है, W3 इज द सिंबल फॉर आइसोबारिक, ठीक है। और W1 इज द सिंबल फॉर आइसोथर्मल। हमारे ग्राफ में आइसोबारिक के बाद आएगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के बाद आएगा
एडियाबैटिक और आइसोकोरिक में तो कोई वर्क डन नहीं होता, आइसोकोरिक तो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है एंड नो एरिया इज एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है डी ऑप्शन। वर्क डन इज मैक्सिमम इन आइसोबारिक, आफ्टर दैट इट इज आफ्टर आइसोबारिक इट इज आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक एंड लास्ट इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तो जीरो होता है वर्क डन। कीप इन माइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 इज डन। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 16। 10 moles of ideal gas expand isothermally and reversibly from a pressure of 10 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin. What is the largest mass that can be lifted through a height of 100 meters? तो देखिए, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए एक तो डेल्टा टी जीरो रहता है, डेल्टा टी इज जीरो, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। वर्क इज गिवन बाय -2.303 nRT log V2 by V1 होता है, बट प्रेशर की टर्म्स में P1 by P2। ठीक है, तो 10 मोल गैस है, R का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा SI यूनिट में, टेम्परेचर 300 लेंगे, हम पहले वर्क कैलकुलेट करेंगे। It is equal to minus this value 10 moles and it is 8.314, temperature 300 log of, log में देखो पहले था मतलब कि आपको 1/10 लेना है, राइट। Pi is 1 and P2 is या P final is 10. log 10 is 1, log 1/10 is -1, ये माइनस माइनस अपने आप से प्लस हो जाएगा, 57441.2 जूल्स वर्क आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट मास विच कैन बी लिफ्टेड, कितना मास उठाएगा, इतना वर्क अगर होता है गैस से तो आप इसको इक्वेट कर दो mgh से। 57441.2 is equal to mass into acceleration due to gravity is 9.8 and the height is given 100 meters. What largest mass can be lifted through a height of 100 meters? तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट करिए, मास विल कम इन केजी, 57.44 kg इज योर आंसर। 57.44 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 58, ऑप्शन दे रखी है तो ये आंसर बनेगा। 58.55 मीन्स बी ऑप्शन। इज इट ओके? सो mgh आपको वर्क के इक्वल इक्वेट करना है, उसके बाद ऐसा यूनिट्स में सारे सिस्टम रखना है। हाइट को आपने मीटर्स में, मास को आपने किलोग्राम में आंसर ऑब्टेन होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज 9.8। right, things are clear. Let's move to the next question number 17th now. 5 mole of an ideal gas at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 Kelvin. If CV is given, find out delta U and P delta V. JEE Mains 2019 का क्वेश्चन है, दो चीजों का आंसर करना है। CV तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं ना, N डेल्टा U is equal to N CV delta T. डेल्टा U is equal to N CV डेल्टा T, और P डेल्टा V कैलकुलेट जो करना है उसके लिए आप यूज करो डेल्टा nRT। तो ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। चेक करते हैं कि हमें CV का वैल्यू कितना दिया है, 28, डेल्टा U चाहिए, टेम्परेचर दिया 100 केल्विन एंड 5 मोल्स इज गिवन। तो ये आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू N CV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो 5 मोल 2.8, एक टेम्परेचर है 200, दूसरा टेम्परेचर है 100। क्वेश्चन में हम फिर से वैल्यूज चेक करें, ये CV का वैल्यू 28 और क्या क्या सिचुएशन है, टेम्परेचर 100 केल्विन था, उसके बाद टेम्परेचर 200 केल्विन हो गया कंप्रेशन के बाद, और 5 मोल गैस है। तो ये आपके पास डेल्टा U बन जाएगा इक्वल टू 14,000 जूल्स विच इज 14 किलो जूल। 14 किलो जूल तो तीन ऑप्शंस में दे रखा है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है साथ में, P डेल्टा V, मतलब डेल्टा PV जिसको कि हम वर्क कहते हैं। तो वो कैलकुलेशन के लिए वी कैन यूज डेल्टा PV इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ना तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं और ना ही R चेंज होना है, वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होना है। सो इट इज 5 मोल एंड 8
200 minus 100, this is the change. You are getting 4000. 4000 मतलब 4 किलो जूल. Let's come to the option. एक आंसर है 14, एक आंसर है 4. आपका सी ऑप्शन बनेगा. सिंपल सी भी दिया था, डेल्टा यू कैलकुलेट करना था. Another one, question number 18. Which one of the following equations does not correctly represent the first law of thermodynamics for the given process is involving an ideal gas? Assume non-expansion work is 0. Again a question from JEE Mains. तो साइक्लिक प्रोसेस फर्स्ट ऑप्शन में दिया है. साइक्लिक प्रोसेस में हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देख लिया था कि डेल्टा यू 0 होता है. जब डेल्टा यू 0 होगा तो Q विल बी इक्वल टू दिस, बिकॉज डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज Q प्लस W. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये बता दिया, तो हम लिख सकते हैं कि Q जो है इट इज इक्वल टू माइनस W. सो ए ऑप्शन तो करेक्ट है. बी पे आते हैं. फॉर बी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक में Q 0 कर देंगे. इन एडियाबैटिक you have to write Q is equal to 0 and delta U is Q plus W. Therefore, delta U is equal to W. By first law of thermodynamics, you can say that increase in internal energy. सिस्टम का एडियाबैटिक सिस्टम है अगर, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज होता है? इट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम. W मीन्स वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द सिस्टम. यहां पे ये माइनस दिया है जो कि गलत है. माइनस तो वर्क डन बाय द गैस को इंडिकेट करता है. सी आता है आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस ये सिचुएशन होता है. फॉर आइसोकोरिक डेल्टा यू इज, आइसोकोरिक में डेल्टा V 0 मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो P डेल्टा V 0. एज अ रिजल्ट आपका इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W में जब W 0 हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q. डेल्टा U है क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ये तो करेक्ट दिया है, बी गलत था. आइसोथर्मल को चेक करेंगे. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कंडीशन क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना, डेल्टा T 0, हेंस डेल्टा U इज ऑल्सो 0. तो आपका इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W में बन जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस W. Q इज इक्वल टू माइनस W इज गिवन. तो बी आपका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. फॉर सिल्वर Cp इज गिवन 23 प्लस 0.01 T. This is Cp. If the temperature T of 3 mole of silver is raised from 300 to 1000 Kelvin at 1 atmosphere pressure, find out delta H. Again, JEE Mains previous year 2018 का क्वेश्चन है. हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है और हम जानते हैं डेल्टा H होता है NCP डेल्टा T, और यू कैन से इट इज NCP dt. इंटीग्रेट करेंगे एंड Cp इज गिवन, 3 मोल दिया है और टेम्परेचर का चेंज भी दिया है. सो इट इज इक्वल टू 3 को बाहर ही ले आते हैं. Cp की जगह क्या लिखना है? 23 प्लस 0.01 T dt. दिस इज T जो है ये आपका 0.01 के साथ है. आफ्टर इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 23T प्लस 0.01 T का इंटीग्रेशन T स्क्वायर अपॉन T. लिमिट है 300 से 1000. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. यू विल गेट 23 इंटू 1000 माइनस 300 प्लस 0.01 एंड इट इज 1000 अपॉन 2 बाहर कर लो. 1000 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर. ये ठीक है. इज इट ओके? तो बस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाता है 61950 जूल्स, अप्रोक्सीमेटली 62 किलो जूल. क्वेश्चन को देखते हैं. ऑप्शंस में 62 किलो जूल है ए ऑप्शन में. डेल्टा H इज NCP डेल्टा T और आपको Cp दिया था 23 प्लस 0.01 T. इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर दिया डेल्टा H का वैल्यू. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ
An ideal gas undergoes isothermal compression from 5 meter cube to 1 meter cube against a constant external pressure of 4 Newton per meter square. मतलब कि ये पास्कल है. And heat released in the process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminium. If molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole per Kelvin, then the temperature of aluminium increases by. कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा? तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ने बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी जीरो, हेंस डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो. तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में ये आ गया क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. जो भी हीट है हम वर्क से कैलकुलेट कर लेंगे. क्यू विल बी इक्वल टू माइनस पी डीवी. राइट. प्रेशर कितना है सिस्टम के अंदर? 4 न्यूटन पर मीटर क्यूब. और चेंज इन वॉल्यूम है 1 माइनस 5. फाइनल वॉल्यूम 1 बन जाता है क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं. गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब. ठीक है. तो ये वैल्यू आ रही है 16 विद ए पॉजिटिव साइन. 16 जूल हीट है सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व. अब आप ये जो हीट है इसको NC डेल्टा टी से इक्वेट कर दो. 16 एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया था? 1 मोल. 1 मोल एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का हीट कैपेसिटी भी दे रखा है 24. दिस इज 1 into 24. फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर. डेल्टा टी इज नथिंग बट 16 अपॉन 24, मतलब कि 2/3 ऑफ K is the unit for temperature, 2/3 of Kelvin, मतलब D option, right? So that is all about the lecture. We have learnt about various processes. We have learnt about the calculation of work done and what are the conditions of temperature, pressures and volumes. And in the next video, again on the same chapter, we will be taking up more questions on adiabatic process work calculation and more questions on isothermal process. And apart from that, various types of heats, various types of enthalpies we will be taking up. आपको देखना है कि एंथैल्पीज को हम मोल 1 यूनिट सैंपल ऑफ मोल के साथ एक्सप्रेस करते हैं या 1 ग्राम इक्विवेलेंट से एक्सप्रेस करते हैं, और राइज इन टेम्परेचर कैसे पता करेंगे अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है या हीट ऑफ कंबस्शन गिवन है, तो हमें किस तरह से बॉन्ड एनर्जीज की कैलकुलेशन करनी है. ऑल दैट वी विल बी टेकिंग अप इन द next lecture, right? So keep practicing till we meet in the next video, and make sure you subscribe to the channel so that you can get more videos and you can have a thorough revision. Thank you and bye bye.